Very good morning, students. Welcome to Political Science class, children. And I am Poonam Prasad here with again the chapter number 3, Electoral Politics. Beta, in our yesterday's class, we came across with the important topics of what is our system of elections. It means election system in Indian perspective. We have came across, right? Then we learnt about the electoral constituencies, the importance of it means the elections, the constituency, we have defined it, and also we have defined the reserved constituencies. In today's class, we are going to have some very important issues basically based on the voters list. Children, voters list, आप लोगों ने अपने फादर और मदर का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको आपने आईडी कार्ड आपने देखा होगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि ये इंश्योर किया जाता है कि आपके फादर मदर is now eligible to vote, fine, and they are considered as the voters. But students, who are the voters, or you can say who is the voter? Children, जब procedures शुरू होते हैं elections के, and once the constituencies are decided, the very next step is to decide who is going to vote and who cannot avail the right of vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. It means everyone of the country, like if we are talking about India, a person is eligible to vote must be entitled in the list prepared officially, and it is called as voter list or electoral roll. बेटा, हम जो भी नागरिक है भारत का और 18 साल से ऊपर जिसकी आयु है, उसे पूरा अधिकार है वोट का, और यही शायद पॉलिटिकल इक्वलिटी भारत को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है. Students, this is a very important step because it is very much needed to justify the the statement that are the elections democratic. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्या हमारे भारत का इलेक्शन, या हम कह सकते हैं भारत में चुनाव, ये क्या लोकतांत्रिक है यानी डेमोक्रेटिक है? Yes, children. Why? Because everyone should get an equal opportunity to choose the representatives. हर किसी को अधिकार है. Earlier we have came across with the word of universal adult franchisee. It means that everyone should have one vote and each vote should have equal value, right? No one should be denied the right to vote without a good reason. It means everyone, irrespective of their caste, creed, religion, gender, education or economic status, the old or young, everyone should have the right to vote, and everyone should have one vote and each vote have the equal value. But sometimes, due to individual indifferences, children, because the citizens are different in terms of their different view based on the politics and about the political views or about the government's functionaries. हर व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बेटा. So different citizens differ from each other in many ways. Therefore, the political equality must ensure that everyone has a right to vote. Fine. All of them deserve to have all of them deserve to have an equal
in terms of voting system. So if we are talking about India, all the citizens aged 18 years and above should be the citizen of India. These are considered as the eligibility to become a voter. Irrespective of any caste, creed, rich or poor, male, female, young, old, literate or illiterate, are having right to vote. Because some criminals and some persons who are not mentally fit, they can denied the right to vote, but no one should deny the rights of vote without any reason. Students, apart of this, suppose a person who attain 18 years of his or her age, now is eligible to vote. Fine, beta? It means that a new person which is attaining the voting age, the name should be added to the voters list. And apart of this, the name of those who move out from the place or those who are dead, the name should be deleted. Fine. A complete, you can say, these वोटर जो इनरोलमेंट होता है बेटा, वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट टाइम टू टाइम रिवाइज्ड किया जाता है, अपडेट किया जाता है ना। हर 5 साल में जब भी इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शंस के टाइम ड्यूरेशन में इनको रिवाइज किया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेकन प्लेस एवरी 5 years चिल्ड्रन. This is done to ensure that it remains up to date. Students, now we are talking about a very important point that is called as EPIC, and EPIC is called as Election Photo Identity, that is EPIC. Photo Identity, Elections Photo Identity Card. The Election Photo Identity Card has been introduced to give to every voter, and the voters are required to carry this card when they go out to vote. I am requesting students to kindly ask your mother and father to show his or her election photo identity card to you people, so that you can, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है ये, and you can just check out the important points which are impressed on it. ठीक है, तो वो जो फोटो आइडेंटिटी होती है, वो फोटो आइडेंटिटी आपको ये दर्शाता है कि आप भारत के सिटीजन हैं और आप एलिजिबल हैं फॉर द वोट. समटाइम्स बेटा, जैसे कि मेरा ही आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो है, फोटो वोटर लिस्ट आइडेंटिटी कार्ड EPIC, इसमें मेरे सारे क्रेडेंशियल्स तो हैं लिखे हुए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है या होम एड्रेस है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मेरी फ़ोटो चेंज है, तो दैट शुड बी अपडेटेड. ये चीज़ें, ये जो फ्लॉज़ है, ये टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है. और इसके लिए हम अपने जो विभाग होता है, जो निर्वाचन आयोग से डील करता है, उसे उन ऑफिसेज़ में जाके हम अपने क्रेडेंशियल्स को ठीक करा सकते हैं, हम अपने आईडीज़ को ठीक करा सकते हैं. बेटा, कई बार होता है जन कल्याण बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे जाके हम अपने आइडेंटिटी कार्ड्स को या वोटर लिस्ट में अपना अपडेशन करा सकते हैं. ठीक है, तो समटाइम्स
The flaws are there, but this is very very important identity for the people. तो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं या सफ़र में जाते हैं फिर तो वी आर कैरिंग ऑल दीज, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड में आपका एक तो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आया, इसके अलावा आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऑल दीज आर द क्रेडेंशियल्स, ऑल दीज आर द or you can say the important cards that we have to carry just to ensure that yes, we are the citizen of the country and we are eligible to be you can say to have a vote. Fine. So ये हमारा आधार है, ये हमारा चुनाव का आधार कहा जाता है। इसीलिए बेटा जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम अपने आइडेंटिटी कार्ड, वोटर्स कार्ड के साथ साथ हम आधार कार्ड या राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी साथ में रखकर जाते हैं। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया से पहले जब हम इलेक्शंस पे कैंडिडेट्स को, अब हम लोगों ने वोटर्स, हमें पता है हु आर द वोटर्स, द सिटीजन ऑफ द country who are above 18 years age. Now the question arises, now who is going to contest the elections? क्योंकि we are going as a voter, we are going to elect our representative. लेकिन representative कौन है बेटा? Who is the representative? A representative is a person, it means he is a candidate. Fine. Now who is the candidate? Anyone who can vote can also contest election. This is the very very important aspect student, कि अगर एक व्यक्ति जो कि वोट देता है उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। बस फ़र्क कितना है कि चुनाव जब हम वोट देते हैं तो उम्र हमारी 18 साल होती है और अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी उम्र 25 साल या 25 साल के ऊपर होनी चाहिए। फाइन बेटा, सम अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज आर ऑल्सो बीन देयर, लाइक देयर आर सम अदर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, but these apply in very extreme cases beta. So no criminal records should be for that candidate who is going to nominate. And the person should have the nationality of India. It means he should have the citizen of India. अब बात आती है बेटा वो पार्टी किस तरह से नॉमिनेट करती है अपनी कैंडिडेट को। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि बेटा हम किसी XYZ को वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री और रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, वो हमारे ही बीच का होना चाहिए। और अगर वो हमारे बीच का है तो कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नॉमिनेट करती है उन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं उस पार्टी का पॉपुलर फेस होता है, हु गेट द पार्टी नॉमिनेशंस, उनको नॉमिनेट करता है, उनको सपोर्ट करता है। वो पार्टी, वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसके सिंबल के साथ वो लड़ता है और इसी को हम लोग कहते हैं टिकट, यानी पार्टी टिकट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफनली कॉल्ड एज टिकट बेटा। तो ये समझ में आया कि जब हम चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हैं, ये प्रक्रिया बेटा बहुत पहले से शुरू हो जाती है। जिस साल चुनाव होने जाता है, हो रहा है, उससे पहले ही ये प्रक्रियाएं हर पार्टी अपने मेंबर्स को, कि कौन से मेंबर्स हमारे पार्टी के वो एक कहते हैं पॉपुलर चेहरा है या लोग उसे पसंद कर सकते हैं या उनके डीड्स या उनके एक्शंस को लोग कितना ज़्यादा सराह सकते हैं या उनको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, ये सारे तथ्यों के आधार पे उनका नाम नॉमिनेट किया जाता है।
और नॉमिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टी टिकट। ठीक है, तो पार्टी नॉमिनेशन इज कॉल्ड एज पार्टी टिकट बेटा। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन स्टूडेंट हैज़ टू फिल अ form. That form is called as nomination form student. वो nomination form भरते हैं और nomination form के साथ साथ वो कुछ security amounts को भी भरते हैं। ठीक है, the question in front of us is कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे, अब जब हमारे इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक रखा जाता है, इसका मतलब है कि जो वोट दे सकता है वो कंटेस्ट भी कर सकता है, बस बशर्ते उसके लिए उसको, चाहे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला उनके संरक्षण में वो रह के वो पार्टी या पार्टी का मेंबर है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन समटाइम्स एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्रिमिनल्स भी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी रख सकते हैं, या वो भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, या क्या उनको भी पार्टी टिकट देता है? बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बेटा। हमारी डेमोक्रेसी या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि everyone who attained its minimum age of 25 can be eligible for the elections, है ना, for contesting the elections। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिक्लेरेशंस किए हैं बेटा, कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। वो रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन को या मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए, क्रिमिनलाइजेशन मतलब आपराधिक तत्वों को, और मसल मीन्स मसल पावर्स और मनी, है ना, कि मनी और अपने पावर का मिसयूज़ ना करे पॉलिटिकल पार्टीज़, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहा है फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन, उनको एक लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ द सीरियस क्रिमिनल केसेस, इन टर्म्स ऑफ लाइक क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, क्या कोई केसेस पेंडिंग है, चाहे वो प्रॉपर्टी के केसेस हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द नॉमिनेशन फॉर्म बेटा। इसके अलावा उनको उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनका एसेट जो है और उनकी लायबिलिटीज़ है, उनको खुद का और उनके परिवार वालों का, इसको डिक्लेयर करना पड़ता है बेटा, कि उनकी कितनी संपत्ति है, उनकी कितनी अचल संपत्ति है। उन्होंने ये अचल संपत्ति, इवन दो समटाइम्स उनसे मीडिया भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, वो कुछ साल पहले तक ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन अचानक उनके पास 5 से 6 करोड़ या 7 करोड़ उनकी अचल संपत्ति शो हो रही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, कहाँ से ये धन आया? ठीक है, तो उनको अपने डिटेल्स ऑफ एसेट शुड बी डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट्स में एक छोटा सा बॉक्स में आपको एक पोस्टर एज अ आर्टिकल बेस्ड आपको मैं प्रेजेंट करूँगी, लाइक इट इज़ डिपेंड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स, कैन इट बी नीडेड और नॉट। क्या किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए, चाहे किसी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कितनी ज़्यादा रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस होना चाहिए? फाइन बेटा। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर कि कैंडिडेट्स को बहुत
वर्कआउट करना पड़ता है, और जब भी वो इलेक्शंस करने के लिए जाते हैं तो उनको जब भी वो नॉमिनेट अपने आप को नॉमिनेशन फाइल यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म्स में जब भी वो अपने डिटेल्स लिखते हैं तो उनको इसके अलावा भी कई और चीज़ों को, कई और क्रेडेंशियल्स को उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। ये क्यों ज़रूरी है? स्टूडेंट्स, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस हैज़ टू बी मेड पब्लिकली एक्चुअली। इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? जस्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, है ना? क्योंकि ये हम एज अ सिटीजन्स, एज अ वोटर्स जानने का अधिकार रखते हैं कि हम किसी से पर्सनल तो नहीं जाकर बात कर रहे हैं, हमें मीडिया के थ्रू, हमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया के थ्रू हमें किसी व्यक्ति के आचारों और विचारों के बारे में पता चलता है, ठीक है? अगर हमें ये पता चलेगा कि नहीं, जो मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि नहीं, ये पर्सन मिस्टर एक्स उन्होंने इतना ज़्यादा एसेट बना लिया है, तो दिमाग में एक अचानक से एक क्लिक करेगा, नहीं, द पर्सन इज़ क्वाइट मे बी वो करप्टेड हो, तो वाई वी आर गोइंग टू गिव अ वोट टू हिम, है ना? या उनकी पार्टी को हम वोट क्यों दें? अगर फिर हमें दिस पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर और फॉर द पोस्ट ऑफ द कॉरपोरेटर्स और फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक्स एंड वाई, है ना? तो उस कंडीशन में ये बहुत, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स एथिकल बेस्ड होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स मॉरल बेस्ड होनी चाहिए, और यही हम जनता का या हम वोटर्स का एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन, एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। और ये एक्सपेक्टेशन भी होती है एज अ वोटर, मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैं चुनने जा रही हूँ वो साफ छवि वाले हों, है ना? तो ऐसा नहीं कि भारत की पॉलिटिक्स में क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स एक ट्रू पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत अच्छे और रिफॉर्मर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम भारत में होने वाले डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो की ही देन है जो आज भारत डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ काम नहीं करेगी, तो बेटा अदर डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, या इंटरनेशनल बेस्ड जो बॉन्डेज हो या इश्यूज़ हो, दैट कैन नॉट बी फुल्ड as per our expectations. Fine, students? So in the next, this is all about today's lecture. So in the you can say the next topic we are going to have a very important on the election campaign. बेटा ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम लोगों ने बात की थी इलेक्शंस के इम्पोर्टेंस पे, फिर हम लोगों ने बात की कि क्या हमारा देश में इलेक्शन सिस्टम कैसा है ना? तो इलेक्शन सिस्टम में हम लोगों ने बात की अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम लोगों ने आज पढ़ा वोटर्स लिस्ट के बारे में और नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। सो टुमारो बेटा अब इलेक्शन से स्टार्ट होंगे तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग्स एंड काउंटिंग्स ऑफ द वोट्स। तो इस तरीके से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। बट बेटा दिस इज़ द रिक्वेस्ट from my side to watch the video and to go for the revisions, students. Fine, thank you.